Hello students, this is the chapter number 6 of your geography book and the title of the chapter is population. So children, can you imagine a world without human being? Who would have utilized the resources and created social and cultural environment? The people are important to develop the economy and the society. The people make the use resource and are themselves resources with varying quality. Coal is but a piece of rock until people were able to invent technology to obtain it and make it resource. Natural events like a flood or a tsunami becomes a disaster only when they affect a crowded village or a town. Hence, population is the pivotal element in social studies. It is the point of reference from which all other elements are observed and from which they derived significance and meaning. Resources, calamities, and disasters are all meaningful only in relation to human being. Their numbers, distribution, growth, and characteristics or qualities provide the basic background for understanding and appreciating all aspects of the environment. Human beings are producers and consumers of Earth's resources. Therefore, it is important to know how many people are there in a country, where do they live, how and why their numbers are increasing, and what are their characteristics. The Census of India provides us with information regarding the population of our country. तो चिल्ड्रन, सबसे पहले देखते हैं कि क्या आप वर्ल्ड को बिना ह्यूमन बीइंग के इमेजिन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या जितने भी रिसोर्सेस हैं हमारी प्रकृति में उपलब्ध हैं, क्या ह्यूमन बीइंग के बिना इन रिसोर्सेस का कोई यूज़ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो चिल्ड्रन, जो पीपल होते हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं किसी भी सोसाइटी को, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, या कितने भी प्रकृति ने जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं उनका यूज़ करने के लिए। तो चिल्ड्रन, ह्यूमन बीइंग्स हैं जो प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं हमारे अर्थ के रिसोर्सेज के। तो इसलिए यह इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि जो हमारे देश, पूरे देश हैं, वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग्स हैं किस तरह से रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं और क्यों उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ हो रही है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। हमारे भारत का जो सेंसस है वो हमें पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे देश की। We are primarily concerned with three major questions about population. First, population size and distribution, population growth and process of population change, and characteristics or quality of the population. तो चिल्ड्रन, बेसिकली इस चैप्टर में 3 चीज़ों पर बात की गई है। सबसे पहला है पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो चिल्ड्रन, पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, भारत में कितनी पॉपुलेशन है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया गया है। फिर सेकंड जो पॉइंट है वह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है और उसको चेंज करने की प्रोसेस है वह क्या है। और थर्ड जो है वो है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखेंगे कि पॉपुलेशन जो है उनकी एज क्या है, उनका सेक्स कंपोजिशन क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उनका क्या है और हेल्थ कंडीशंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। So let's see population size and distribution. India's population size and distributions by number. India's population as on March 2011 stood at 1,210.6 million, which account for 17.5% of the world's population. These 1.21 billion people are unevenly distributed over our country vast area of 3.28 million square kilometer, which accounts for 2.4% of the world's area. The 2011 census data reveal the Uttar Pradesh, with a population size of 199 million, is the most populous state of India. Uttar Pradesh accounts for about 16% of the country's population. On the other hand, the Himalayan state of Sikkim has a population of just about 0.6 million and Lakshadweep has only 64,429 people. Almost half of India's population lives in just 5 states. These are Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal and Andhra Pradesh.
Rajasthan, the biggest state in terms of area, has only 5.5% of the total population of India. तो चिल्ड्रन, इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो मार्च 2001 में 1028 मिलियन था, जो कि वर्ल्ड का 16.7% पॉपुलेशन थी। और यह 1.02 बिलियन पॉपुलेशन जो थी वो हमारे देश में, हमारी कंट्री में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, जो कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, बहुत बड़े एरिया में रहती थी, जो कि वर्ल्ड का टोटल एरिया में से देखा जाए तो 2.5% एरिया था जिसमें कि ये पॉपुलेशन रहती थी। 2001 के सेंसस को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश में उत्तर प्रदेश की थी, जो कि 166 मिलियन पीपल जो है वहाँ पर रहते थे, हमारे भारत के ही। और इसलिए जो उत्तर प्रदेश है वहाँ की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 16% पॉपुलेशन जो है हमारे देश की वहीं पर रहती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हिमालयन जो स्टेट्स है, जैसे सिक्किम है, वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, जैसे 0.6 मिलियन ही है। और लद्दाख में सिर्फ 64,429 पीपल ही निवास करते हैं। देखा जाए तो ऑलमोस्ट इंडिया की हाफ पॉपुलेशन जो है वो जस्ट 5 स्टेट्स में ही रहती है। वो हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान जो है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा हमारे देश का स्टेट है, और इसके बाद भी वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 5.5% ही है। चिल्ड्रन, हियर इज one question for you. What could be the reason of uneven distribution of population in India? You have to find this answer. इस जो पॉपुलेशन शेयर है, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, इससे हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 82.5%, ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतना हिस्सा है, और इंडिया की पॉपुलेशन 17.5% है। ये आप पॉपुलेशन वाइज देख सकते हैं। अब एरिया वाइज यदि देखें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 97.6, देखिए एरिया वाइज 97.6 जो वर्ल्ड का हिस्सा आता है, एरिया आता है, और सिर्फ 2.4% एरिया भारत में है। तो इतने एरिया में सबसे 17.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रह रही है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, चिल्ड्रन आप देख सकते हैं कि स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है पॉपुलेशन का। इसको आप रीड करके बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो दी गई है वो 16% दी गई है, महाराष्ट्र में 9%, बिहार में 9%, मतलब टोटल पॉपुलेशन के कितना परसेंट किस स्टेट में रह रहा है ये आप इससे बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। बिहार में 9%, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश 7%, मध्य प्रदेश 6%। दैट मीन्स हमारा जो भारत है उसकी 6% पॉपुलेशन हमारे मध्य प्रदेश में निवास करती है। इसी तरह से आप राजस्थान, झारखंड, केरला, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, ये सारे स्टेट्स की पॉपुलेशन को आप इसमें रीड कर सकते हैं। अब चिल्ड्रन, इस मैप में दिया गया है 2011 के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कि नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने रहते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन से दिखाया गया है यहाँ पर 250 और उससे भी कम पर्सन्स जो रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। जो लाइट ग्रीन से दिखाया गया वहाँ 251 से 500 पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं लोग। इसके बाद 501 से 750 पर स्क्वायर किलोमीटर में जो पर्सन्स दिखाए गए येलो कलर से दिखाए जा रहे हैं। फिर ऑरेंज कलर में 751 से 1000 पर्सन्स रह रहे हैं, 1001 और उससे ज्यादा रेड कलर से शो किए गए हैं। तो चिल्ड्रन, यहाँ पर स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप इसे आसानी से स्टडी कर सकते हैं कि किस स्टेट में जो है वो ठीक रेशियो है पॉपुलेशन का, इस एरिया वाइज पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, और किस एरिया में बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पर दिखाई जा रही है। तो इस मैप से आप पॉपुलेशन की डेंसिटी को अच्छी तरह से रीड कर सकते हैं। चिल्ड्रन, पर स्क्वायर किलोमीटर से मतलब है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो डेंसिटी है वो मतलब उनका जो घनत्व वो कितने लोग रह रहे हैं। जो ग्रीन कलर से शो किए गए स्टेट्स हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है, और भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये कुछ ठीक है। घनी आबादी है जहाँ पर वो है आपका वेस्ट बंगाल, बिहार। तो चिल्ड्रन, ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, तो इसका क्या रीज़न
है, क्या रीजन हो सकता है? तो आसाम एंड मोस्ट ऑफ द पेनिनसुलर स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटीज, हिली, डिजर्टिक एंड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, मॉडरेट and too low rainfall, shallow and less fertile soil have influenced population densities in these areas. Another plain in Kerala in the south have high to very high population densities because of the flat plains with fertile soil and abundant rainfall. तो चिल्ड्रन, ऐसे एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी 250% है या उससे कम है, उसका कारण है वहाँ पर जो अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं वो, या फिर अनइवन लैंड होती है, उसकी वजह से वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लोग वहाँ बहुत ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। और उसी के अपोजिट यदि देखा जाए ऐसे एरियाज में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो उसका कारण है फर्टाइल लैंड है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस है, ये सारी चीज़ें यदि अच्छी होंगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर ज़्यादा होगी, लोग वहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। हमने देखा कि केरला और नदर्न प्लेन्स में यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है कि फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है और जो है वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छी है। इन सारी वजहों से वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है इन एरियाज़ में। Children, here is one activity you have to do. Identify the 3 states of the northern plains with high population densities. Children, in the next video we will see population growth and process of population change.